Hello students, in this video we are going to do exercises of the chapter verbs. So first we will revise the chapter. Question is, what is a verb? Students, in last video we learned about verbs and their kinds like non-finite verb and finite verbs. So first we will discuss what is a verb. In simple way we can say that doing words or action words are called verbs. Doing words or action words are called verbs. किसी भी कार्य को करने या होने का बोध कराने वाले शब्दों को क्रिया कहते हैं। वर्ब को हिंदी में क्रिया कहते हैं। Students, a verb is an important part of a sentence. A sentence cannot be formed without a verb. Verb means क्रिया सेंटेंस का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। क्रिया के बिना हम सेंटेंस फॉर्म नहीं कर सकते हैं। कोई भी सेंटेंस, कोई भी वाक्य बिना क्रिया के कंप्लीट नहीं हो सकता है। Let us know more about verbs. First is doing verbs. Doing verbs means most of the verbs fall into this category of doing verbs. बहुत सारे ऐसे verbs हैं जो इस कैटेगरी में आते हैं, doing verbs. Doing verbs means action words जिसे हम करते हैं, like eat, read, drink, walk. This time you are watching the video, to watch. I am speaking. So in this sentence, what is a verb? Speak. Like this. These all are doing verbs. And next one is be verbs. B-E-B. Be verbs. What is be verbs? Be verbs are is, am, are, was, were, will be and shall be. These verbs denote being. Like in present tense we use is, am, are. In past tense we use was and were. And in future tense we use will be or shall be. And third one is have verbs. Have verbs are have, has, had. Have verbs में have, has और had आते हैं, and will have and shall have. Have verbs are have, has, had, will have and shall have. These are the verbs that show possession. ये ऐसे verbs हैं जो possessions means belonging show करते हैं, like I have a pen, you have a car. In present tense we use so I have a pen, you have a car. Have, has किस में यूज़ किए जाते हैं? प्रेजेंट टेंस में. पास्ट टेंस में हम क्या यूज़ कर सकते हैं? हैड. एंड इन फ्यूचर टेंस वी यूज़ विल हैव एंड शैल हैव. लेट्स डू सम एक्सरसाइजेस. नाउ फर्स्ट इज underline the verbs in the following story. This is a story and you have to underline the verbs. Let's get started. One day Akbar asked his courtiers, means Darbari. One day Akbar asked his courtiers, what is the thing that travels fastest in the world? So in this sentence, what is a verb, students? One day Akbar asked his courtiers. See here, asked, A-S-K, ask. Ask means पूछना. Asked ये कौन सा फॉर्म में है? ये पास्ट टेंस में हो गया. आस्क्ड इसमें ईडी ऐड हुआ है और हम जानते हैं कि वो केवल वर्ब में ही हम वर्ब को चेंज किया जा सकता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग. लाइक वर्ब में हम एस और ई एस ऐड करते हैं, आईएनजी फॉर्म बनाते हैं, ईडी ऐड करते हैं, डी और ईडी ऐड करते हैं. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि आस्क में ईडी ऐड हुआ है तो ये क्या हो जाएगा? वर्ब हो जाएगा. सो यू विल अंडरलाइन द वर्ड आस्क्ड. नेक्स्ट,
What is the thing that travels fastest in the world? Now see in this line is, हमने लास्ट में पढ़ा, पहले पढ़ा अभी थोड़ी देर पहले कि is, am, are, was, were, ये भी कौन से क्या है, verbs हैं. यहाँ पे ये is क्या है, verb. So you will underline is. One of the courtiers said bullock cart, another said wind, yet another said light. One of the courtiers said, here said, you will underline said. Bullock cart, another said, then here you will underline this said, and then here. Said means kaha. It is a verb. Clear? Next. आगे देखते हैं. Akbar waited for Birbal's answer and then Birbal spoke, Your Majesty, the thoughts in the mind travel the fastest. Akbar waited for Birbal's answer. So here waited means प्रतीक्षा किया. ये past tense का verb है. So you will underline waited. Waited for Birbal's answer and then Birbal spoke. Birbal spoke. Spoke is past tense of speak. ये speak का past tense है. Speak, spoke. Clear? Then you will underline spoke. The thoughts in the mind travel the fastest. Travel. Here the word travel क्या हो जाएगा, verb हो जाएगा. In a moment you are in this court and in the next moment your thought will take you somewhere else. Here are एक verb है, so you will underline are. You are in this court and in the next moment your thought will take you somewhere else. Will ये future tense में हम use करते हैं will और shall. तो यहाँ will के साथ और क्या आया है, ये helping verb हो गया will, और helping verb के साथ main verb क्या है, take. will take. इन दोनों words को हम underline करेंगे. will take. So thought is the fastest thing in the world. Thought is को underline करेंगे. Everyone was very surprised at Birbal's answer. Was, here was is a verb. Clear? Akbar was proud of Birbal's wisdom and rewarded him suitably. Akbar was, here was is a verb. Then wisdom and rewarded him suitably. Rewarded क्या हो जाएगा, verb हो जाएगा. तो आप किसे अंडरलाइन करेंगे, rewarded को. reward का ये past tense है, rewarded. Clear? Now next point is transitive verbs and intransitive verbs. First question is, what is a transitive verb? Transitive verbs are verbs that need an object to convey complete sense. Students, ट्रांजिटिव वर्ब्स ऐसे वर्ब्स होते हैं जिन्हें एक ऑब्जेक्ट चाहिए रहता है सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए और एक कंप्लीट सेंस देने के लिए. बिना सेंटेंस में बिना ऑब्जेक्ट के, ट्रांजिटिव वर्ब्स में बिना ऑब्जेक्ट के वो सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता है और उसका कोई सेंस नहीं निकलता है. फॉर एग्जाम्पल, वीना लव्स, मोना लाइक्स. सो स्टूडेंट्स, they are groups of words. These are not sentences. हम इसे सेंटेंस नहीं कह सकते हैं क्योंकि ये कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहे हैं, ये अभी इनकम्प्लीट है. और अगर इसमें हम जब ऑब्जेक्ट ऐड करेंगे तब ये कंप्लीट सेंस देंगे. लाइक वीना लव्स चाइनीज़ फूड, मोना लाइक्स आइसक्रीम. नाउ वी कैन से दैट दीज सेंटेंसेस मेक कंप्लीट सेंस. अब ये कंप्लीट सेंस दे रहा है. क्लियर? तो ट्रांजिटिव वर्ब्स ऐसे वर्ब्स होते हैं जिन्हें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है. नेक्स्ट इज इंट्रांजिटिव वर्ब्स. इंट्रांजिटिव वर्ब्स आर वर्ब्स दैट कन्वे कंप्लीट सेंस बाय देमसेल्व्स. इंट्रांजिटिव वर्ब्स ऐसे वर्ब्स होते हैं जो कंप्लीट सेंस खुद में ही कंप्लीट सेंस देते हैं, इन्हें किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती है. लाइक जिया लाफ्ड, द बेबी क्राइड,
तो ये दोनों क्या है, सेंटेंसेस कंप्लीट है, ये कंप्लीट मीनिंग दे रहे हैं। जिया हंसी, बच्चा रोया, तो ये क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब्स हो गए, इन्हें किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती है। Intransitive verbs make sense by themselves, they do not require objects. Now students, next exercise is underline the verbs and circle the objects in the following sentences. कुछ sentences हैं जिसमें आपको verbs मीन्स क्रिया को अंडरलाइन करना है और ऑब्जेक्ट्स को सर्कल करना है। जब आपको पता चलेगा कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट है तो वो क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव वर्ब्स होंगे। ट्रांजिटिव वर्ब्स में ही ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, इन ट्रांजिटिव वर्ब्स में ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती है, दे डोंट रिक्वायर ऑब्जेक्ट्स। फर्स्ट सेंटेंसेस, मीना बॉट अ न्यू साइकिल, मोना हैज़ अ न्यू डॉल, फातिमा ईट्स एन एप्पल एवरी डे, मदर प्रेज्ड सोहन फॉर हिज परफॉर्मेंस इन द यूनिट टेस्ट, they have a pet dog in their house. So students, underline the verbs and circle the objects. Next is underline the verbs and write whether they are transitive or intransitive. इन सेंटेंसेस में आपको वर्ब्स को अंडरलाइन करना है और वहाँ पे ये बताना है कि ये जो सेंटेंस है वो ट्रांजिटिव है और इंट्रांजिटिव है, मतलब वो वर्ब्स जो हैं वो ट्रांजिटिव हैं और इंट्रांजिटिव वर्ब्स हैं। सो फर्स्ट इज द शॉपकीपर सोल्ड फ्रूट्स अलॉन्ग विद अदर आइटम्स, द बेबी क्राइड व्हेन ही कुड नॉट फाइंड हिज मदर, वीना प्लेज चेस, द सन राइजेज एवरी मॉर्निंग, शी अंडरस्टूड द प्लॉट ऑफ द स्टोरी, I love watching Harry Potter movies. Mihika wrote a letter to her grandmother yesterday. Mother is cooking dinner. So in these sentences you have to underline the verbs and write whether they are transitive or intransitive. And the last exercise is circle the verbs of incomplete predication and underline their complements. तो इस एक्सरसाइज को करने से पहले हम इसके बारे में पहले पढ़ते हैं, व्हाट इज इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन एंड कॉम्प्लीमेंट्स। नाउ सी दीज ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स, फर्स्ट इज मिसेस कुमार वॉज एंड सेकेंड इज द बेबी अपीयर्स। नाउ स्टूडेंट्स, द वर्ब्स in these sentences was and appears cannot make complete sense by themselves. ये जो words हैं, verbs हैं was and appears, ये complete sense नहीं दे रहे हैं खुद में। They don't express any action or show possessions, और कोई possessions भी show नहीं कर रहे हैं। अब इसे हम किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू इसे हम कंप्लीट करते हैं, लाइक मिसेस कुमार वॉज अ टीचर, द बेबी अपीयर्स स्लीपी। अब ये सेंटेंसेस क्या हैं, कंप्लीट सेंस दे रहे हैं, इनमें हमने कुछ वर्ड्स जोड़े हैं। हाँ, उसमें लाइक फर्स्ट में हमने क्या ऐड किया, अ टीचर, और सेकंड वाले में स्लीपी। ये ऐड किए करने के बाद से ये हमें एक कंप्लीट सेंस दे रहे हैं। सो अ वर्ब विच डज नॉट एक्सप्रेस any action or show possessions and needs the help or presence of some word or words to make sense is called a verb of incomplete predication. ऐसे वर्ब जो किसी एक्शन को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं और किसी पोजीशन को शो नहीं करते हैं, इन्हें किसी वर्ड्स और ग्रुप ऑफ वर्ड्स की ज़रूरत होती है, तब वो कोई सेंस निकालते हैं, तो वो क्या होता है, इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन कहलाता है। लाइक फर्स्ट वाले में हमने देखा मिसेस कुमार वॉज, तो इसमें वॉज क्या है, ये इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन है। और जब इसी का हमने एक फॉर्म बनाया है, एक सेंटेंस बनाया है, तो उसमें क्या ऐड हुआ है, अ टीचर, तब ये कंप्लीट हो गया है। जो कंप्लीट नहीं है, वॉज के लिए कुछ ज़रूरत था कुछ वर्ड को, तो इस जिस वर्ब को किसी वर्ड्स और ग्रुप ऑफ वर्ड्स की ज़रूरत होती है वो इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन कहलाता है। तो वॉज, अपीयर्स, लुक्स, ये सारे क्या है, इसके एग्जाम्पल्स हैं।
And what is complements? The word or words that help a verb of incomplete predication to make sense are called complements. जिस वर्ब को किसी वर्ड्स की ज़रूरत होती है वो इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन है, और जिस वर्ड्स को हम ऐड करते हैं, जो ऐड होता है इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन को कंप्लीट करने के लिए, जो वर्ड्स और ग्रुप ऑफ वर्ड्स ऐड होते हैं वे कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं. दे आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ कंप्लीट प्रेडिकेट. सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हम लोग पढ़ते हैं ना कि एक सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. तो ये क्या है? दे आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ कंप्लीट प्रेडिकेट. तो इस एक्सरसाइज में क्या है? सर्कल द वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन एंड अंडरलाइन देयर कॉम्प्लीमेंट्स. तो एक एग्जांपल हम देखते हैं. हर फेस ग्रू पेल. तो इसमें वर्ब क्या है? ग्रू. ग्रू क्या है? वर्ब है, तो इसे सर्कल किया गया है. तो ये अगर हम केवल पढ़े हर फेस ग्रू, हर फेस ग्रू, पेल हटा दे रहे हैं, तो ये ग्रू क्या हो जाएगा? इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन हो जाएगा. तो इसे सर्कल कर दिया है. और इस ग्रू, इस वर्ब को एक वर्ड की ज़रूरत थी जो यहाँ पर लिखा हुआ है, तो ये क्या है? इसका कॉम्प्लीमेंट है, ये कॉम्प्लीमेंट है, सो इसे अंडरलाइन किया गया है. तो इसी तरह से आपको ये सारे एग्जाम्पल जो सेंटेंसेस हैं उसे करने हैं. इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन को आपको सर्कल करना है और कॉम्प्लीमेंट्स को आपको अंडरलाइन करना है. तो फर्स्ट सेंटेंस में हम देख सकते हैं मैरी सीम्स सैड. तो इसमें मैरी सब्जेक्ट है, वर्ब क्या है? सीम्स. तो सीम्स अगर सैड हमने हटाया तो सीम्स बचा. तो सीम्स क्या होगा? इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन. सो यू विल सर्कल द वर्ब, यू विल सर्कल दिस सीम्स. ये इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन है. और सीम्स में ऐड किया है सैड, इस वर्ड को ऐड किया गया है. सो सैड क्या हो जाएगा? कॉम्प्लीमेंट्स हो जाएगा. सो यू विल अंडरलाइन सैड. Now next is Vinita cooks very well. The dog was ferocious. Jyoti sang very melodiously. Tanya was upset. The principal appeared angry. Vishal will be surprised to see us. Manu is happy. Clear? तो इन सारे एक्सरसाइज को आप कंप्लीट करके ग्रुप में भेजेंगे.